नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी का स्वागत है इवनिंग न्यूज लाइव में। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब से आई आज की बड़ी खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मानसा में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी। कैबिनेट में लिए गए तमाम फैसलों की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दी है। कैबिनेट बैठक में चिट फंड कंपनियों से जुड़े तमाम कानून को लेकर बदलाव की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि जालसाजों को 10 साल की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही मान ने बताया कि चिटफंड कंपनियों, विशेष रूप से पर्ल समूह और कई अन्य के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि कुल 14,239 संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा, जिसमें 7,902 शिक्षक जिन्होंने अपनी सेवा में 10 वर्ष या फिर उससे अधिक समय पूरा कर लिया है और नौकरी में गैप वाले 6,387 शिक्षकों को भी नियमित किया जाएगा। वो टीचर 10 साल ਜਾਂ 10 साल तो ਉੱਪਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7902 7902 ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 6337 6337 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 6337 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟੁੱਟਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6337 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ 14,239 ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ काउंट करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया है। मान ने कहा है कि 19 और 20 जून को 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। वहीं मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। 19 जून ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। 19 ਜੂਨ ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ BAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लुधियाना में करोड़ों रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ATM में कैश जमा करने वाली कंपनी CMS सिक्योरिटी के ऑफिस से ही ये लूट हो गई है। लुधियाना के कमिश्नर मनदीप सिंह ने बताया कि रात 2 बजे 10 बदमाश हथियारों के साथ घुसे और फिर 7 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। यहाँ पर 5 सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे जिन्हें बंदी बना लिया गया था और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया लुटेरों में एक महिला भी शामिल थी। लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर मुल्लापुर से कैश वैन बरामद कर ली गई है, लेकिन उसमें रखे हुए सारे पैसे लुटेरे अपने साथ ले गए। लुटेरों ने बड़ी चालाकी के साथ CCTV की DVR भी अपने साथ ले गए। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ CMS ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 15-16 ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਆਰਮਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਤਾ ਤੇ ਉਹ सिक्योरिटी गार्ड्स रिएक्ट नहीं कर पाए। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने सूरजमुखी की फसल को किसानों को लेकर बड़ी राहत दी है। सीएम ने सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर बढ़ाकर एक प्रकार से इसे 1000 रुपए किसानों के लिए रिलीज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 8528 किसानों को 36,414 एकड़ का 29 करोड़ 13 लाख 12 हजार रुपए रिलीज किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि लोगों ने किसानों के बीच भ्रम फैलाया और कहा कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि हमने उतना किया है जितना किसी ने भी नहीं किया है। कि कुछ कंफ्यूजन टाइप कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के जो फैलता है, तो उसमें हमें लगता है कि हमें अपनी बात को आपके सामने कह देना चाहिए ताकि लोगों को भी ठीक से इससे चला जाए। आज का विषय मेरा है कि किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं, लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे में सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीज़ों को उल्लेख करना चाहूँ, वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का इस प्रकार से कैसे ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, सरकार गठबंधन चल रही है और हम सरकार चला रहे हैं। संगठन की चर्चा उनकी ओर से की जा रही है। आगे के लिए संगठन क्या सोचता है वो खुद ये तय करेगा। हम जेजेपी के साथ गठबंधन में अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि निर्दलीय विधायकों की बैठक प्रभारी से हुई है। मेरे साथ किसी भी नेता की गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई है। गठबंधन फिलहाल अच्छे से चल रहा है। हमारे साथ जेजेपी के अलावा निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल संख्या 58 विधायकों की है। मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ। प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई, उस समय मुझे इसका कुछ पता नहीं है। मैंने बोला सोमवीर सांगवान ने कैमरों पे कहा कि इस गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, हम 7 विधायक सरकार के साथ हैं। अच्छा हो कि आप सोमवीर से पूछ लो। नहीं, वो बोला उन्होंने। नहीं, आपको कहा पूछने तो उनसे पूछ लो। इशू ये है, गठबंधन की सरकार चलती है आपको जनता के हित के लिए। अब बीजेपी जेजेपी सरकार जनता के हित में ही ठीक काम कर रही है। तो ये तो आगे की बातें चल रही हैं। आज की बात होगी। आज गठबंधन है, वो जनता के हित में ही चल आज रही है। विधायक का कहना है कि गठबंधन तोड़ते ही 25% एंटी इंक्रीमेंट की सरकार खत्म हो जाएगी। अब अनुमान सबके अपने अपने, बातें सबके अपने। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन टूटने की खबरों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी विराम लगा दिया है। चौटाला ने जेजेपी बीजेपी गठबंधन बरकरार रहने का दावा किया है। चौटाला ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में सुचारू रूप से सरकार चला रहा है। वो पिछले 3 साल से मीडिया में बीजेपी और जजपा के अलग होने की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन गठबंधन मजबूत है और इसमें कोई भी दरार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे।
और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। अब रुख करते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 साल बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की वापसी हो रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने रविवार को यानी कल ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर बड़ी रैली बुलाई है। इस रैली में आम आदमी पार्टी का मुद्दा भी होगा, जो कि होगा केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ वार करना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा आप जानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन आज देश की राजधानी में दिल्ली वालों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कैसे? दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुन करके प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, हर मोड़ पर अड़ंगे लगाती है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, उसकी संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार है, फैसले लेने का अधिकार है। इससे दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन चोर दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करते हुए केंद्र की सरकार ने दिल्ली में ऑर्डिनेंस ला करके सारे अधिकार छीन लिए। आप सबसे निवेदन है, ये बात केवल दिल्ली सरकार के अधिकारों की नहीं है। आज दिल्ली सरकार के अधिकार छीने गए तो कल दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए सारे कामों को ठप किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि 11 जून को इसके खिलाफ पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में 10 बजे पहुंच रही है। आप भी जरूर पहुंचें। जय हिंद। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों से लड़ने के साथ ही हमारे सुरक्षा बल लगातार मातृभूमि के प्रति अपने फर्ज को भी निभाते हैं। वहीं समय समय पर आम नागरिकों के प्रति भी वो लगातार सेवा भाव के साथ समर्पित भी नजर आते हैं। इसी कड़ी में सीआरपीएफ ने जम्मू के सुकेतर इलाके में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहां पर गरीबों और जरूरतमंदों को दवाई और इलाज मुहैया कराया गया। रुक करते हैं आखिरी खबर का। पंजाब के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आगामी 11 जून और 12 जून के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने कहा है, हालांकि इस चरण में हल्की बारिश फायदेमंद होगी। तेज हवाएं और भारी बारिश फसल की उपज को भी प्रभावित करेगी और फसल की कटाई में 10 दिनों की देरी होगी। वहीं इसके साथ ही उन्होंने इस बेमौसम बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन को बताया है। जी, पिछले दिनों में भी हमने देखा कि WD सिस्टम काफ़ी डेवलप हुए और उससे टेम्परेचर में फॉल ऑब्जर्व की गई। बट अब जो 3-4 दिन से क्योंकि कंडीशंस क्लियर थी और टेम्परेचर में फिर राइज हमने ऑब्जर्व की है। जो हमने कल का मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि 8 जून का नॉर्मल जो डे टाइम टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आज का जो मिनिमम टेम्परेचर 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आज का नॉर्मल 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो हम देख रहे हैं कि नियर नॉर्मल जो वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस चल रही हैं। बट क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि WD सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इस पर काफ़ी रही है और अब भी WD सिस्टम थोड़ा है पंजाब में और इसी का इफ़ेक्ट आने वाले 2-3 दिन ज़रूर हो सकता है और सारे पंजाब में ही कहीं कहीं लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है या लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म्स हो सकते हैं। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपने राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए TV9 पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।